Dear students, today we are going to start Maths Part 1, Chapter 1, Angle and its Measurement. Exercise 1.2. See question number 6 today. The area of a circle is 25 pi square centimeter. Find the length of its arc subtending an angle of 144 degree at the center. Also, find the area of the corresponding sector. So see the explanation of the question. A circle is given which has area 25 pi square centimeter. So first work you have to apply area of circle formula and then you have to find radius of circle. Find the length of its arc subtending an angle of 144 degree. This means central angle of the corresponding arc is 144 degree. So first we should convert 144 degree into radian. After that, applying the required formula and we get our final answer. So in this question it is given that area of circle is 25 pi square centimeter and central angle is 144 degree. Now see the solution of this question. Since area of a circle equal to 25 pi square centimeter given. Therefore, so what is area of circle formula? It is pi r square equals 25 pi. So we see that pi r square equal to 25 pi. So pi going by pi. Pi get cancelled. Therefore, r square equal to 25. Taking square root on both sides, we get r equal to 5 centimeter. So we get radius of circle 5 centimeter. Now, central angle in the question it is given that 144 degree. So theta equal to 144 degree. But in our formula, in this chapter, for the length of arc or area of corresponding sector, we need to convert theta into radian. So theta equal to 144 degree, right? It is given. So after that, you have to convert this angle into radian. So if we multiply by pi upon 180 into 144 means 144 into pi upon 180, we get radian angle. So after simplification, this term we get 4 pi upon 5 radian. Or you can say theta equal to 144 degree. It is equal to 4 pi upon 5 radian. It is divided by 36. So 36 5 and 36 4. Divide करोगे, you will get 4 pi upon 5 radian. Now we have radius of circle r equal to 5 centimeter and theta equal to 4 pi upon 5 radian, and we have to find here length of arc of corresponding sector. Now using the formula for length of an arc, it is denoted by the letter S. So length of an arc S equal to R multiplied by theta, where theta is in radian. Attention always, in this formula S equal to R into theta, where theta is in radian. Now we substitute the values of R and theta in this step. So we see that R equal to 5 centimeter using R equal to 5 here, and theta equal to 4 pi upon 5, so it is 4 pi upon 5. So 5 going by 5 cancelled here.
So it is equal to 4 pi centimeter. Actually it is length of an arc. So this is length of an arc S equal to r theta. So its unit is centimeter only because of length, 4 pi centimeter. So this answer is in terms of pi. If anyone is interested for the actual answer, exact answer in decimal form, so you can multiply by 4 into 22 upon 7. You will get your answer in decimal point. Clear? So this is length of an arc, 4 pi centimeter. After that, you have to find area of the corresponding sector. Means length of arc and area of the corresponding sector. So using next formula, since area of corresponding sector equal half into r square into theta, that is half r square theta. Here theta is also in radian. So this will be equal to half into square of 5 means square of r into 4 pi upon 5. So if we simplify it, we get 1 time 5 cancel and here 2 to the 4. So we get 5 into 2 pi, that is 10 pi square centimeter. Attention here, it is area of the corresponding sector, so its unit must be in square centimeter or square units as per as given question. So its area is this. Area of corresponding sector equal half r square theta, that is 10 pi square centimeter. So this question is completed now. You have two answers. Length of an arc S equal to 4 pi centimeter and area of corresponding sector equal to 10 pi square centimeter. Now see question number 7. OAB is a sector of the circle having center at O and radius 12 centimeter. If measure of angle AOB equal 45 degree, find the difference between the area of triangle AOB and sector AOB. See once again, OAB is a sector of the circle and its center is O. Radius of circle 12 centimeter. Central angle 45 degree. We have to find area between triangle AOB and sector AOB. So which part is greater in these two, triangle AOB or sector AOB? Yes? Anyone student? Okay. Sector AOB is the larger part and triangle AOB is the smaller part. Is the right answer. Okay. Now see its a solution. For the solution, first we note radius r equal to 12 centimeter, which is given, and central angle theta equal to 45 degree. So if we convert theta into radian by multiplying pi upon 180, this will be pi upon 4 radian. और वैसे भी ऑलरेडी कैलकुलेशन करते करते याद भी हो गया होगा, many times you have converted 45 degree into radians. So 45 degree is pi upon 4 radian. Now see the figure first. In this diagram, this is circle. O is the center of circle and this one OAB, this one OAB, this one is sector, this one is sector, and here OAC, this line, ये line chord के थ्रू आएंगे, this one is triangle OAB, और हम लोग arc के थ्रू जाएंगे OAB, this is sector. ठीक है, तो central angle is 45 degree. Draw a perpendicular AC on OB. Draw a perpendicular AC on OB.
So central angle is 45 degree. This is perpendicular, that is this angle is 90 degree. So remaining angle of the triangle will be 45 degree. So this triangle is known as, means which triangle? Triangle OCA is known as 45 45 90 degree triangle. करेक्ट. और हमें क्या फाइंड करना वो भी देखो. एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी मीन्स ये आर्क के थ्रू आना है, ये ऐसा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये है ट्रायंगल ओ ए बी. तो ये जो सैडेड पोर्शन यहाँ पर शो किया गया मीन्स हमें इस पार्ट की एरिया फाइंड करनी है. व्हाट इज द एरिया ऑफ द सैडेड पोर्शन. ओके, नाउ सी द फॉर्मूला. सिंस एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इक्वल हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किए थे कि एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा. इट इज इक्वल टू हाफ इंटू स्क्वायर ऑफ 12 इंटू थीटा इज पाई बाई 4. तो यहाँ से देखो 12 स्क्वायर इज 144 और इसको 4 से डिवाइड कर दो, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे मीन्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन होल पार्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. यहाँ पर मैं कैंसिल इसलिए नहीं करता हूँ कि जिससे स्टूडेंट को रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, क्योंकि यहाँ मैं कट करूँगा सिंप्लीफाई करूँगा तो रीड करने में प्रॉब्लम होगी. दिस इज द रीजन आई एम नॉट कैंसिलिंग एनी टर्म हियर. बट आफ्टर सिंप्लीफाइंग हियर इट इज 12 स्क्वायर 144 अपॉन 8, या 4 से कट करो फिर 2 से कट करो, वी गेट 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. So this is the area of sector AOB. Now in triangle OAC, see this triangle, जैसा कि अभी मैंने बताया, देखो एंगल AOC 45 डिग्री एंड AC परपेंडिकुलर OC या OB भी बोल सकते हो. तो therefore angle OAC is 45 degree. This is the remaining angle of a triangle या angle sum property of a triangle भी बोल सकते हो, क्योंकि ये 45 डिग्री है और ये एंगल है 90 डिग्री. तो ये 135 होगा, 180 में से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 45 डिग्री, वैसा भी लिख सकते हो. नाउ AC वी वांट टू फाइंड AC, क्योंकि AC क्या है अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ट्रायंगल OAB. perpendicular distance of triangle OAB or perpendicular length. Since AC equal to 1 upon root 2 into OA. अब देखो 90 इसके अपोजिट का साइड है OA और ये रेडियस है सर्कल की जो है 12 सेंटीमीटर. तो हमें ये फाइंड करना है AC. तो AC इक्वल टू 1 बाई रूट 2, ये AC है यहाँ पर 1 बाई रूट 2, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री. ठीक है, तो OC और AC दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, बट वी नीड ओनली AC. तो हम यहाँ पर सिर्फ AC को शो किए. AC इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इंटू OA इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 12. दिस इज द वैल्यू ऑफ OA. तो अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, यूजिंग 45 45 90 डिग्री थियरम प्रीवियस ईयर में यूज कर रहे थे. या अगर AC की लेंथ फाइंड करनी है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली साइन 45 डिग्री इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी सेम आंसर मिलेगा. इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन ट्रिग्नोमेट्री so you can apply sin 45 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन OA, तो भी आंसर सेम मिलने वाला है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो AC की वैल्यू जो यहाँ पर है 1 बाई रूट 2 इंटू 12 6 रूट 2 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 1 बाई रूट 2 यहाँ पर है, ये है 2 इंटू 6, तो 2 को लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 गेट कैंसल्ड, 6 रूट 2 सेंटीमीटर. अदरवाइज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रूट 2 भी कर सकते हो, तो आ जाएगा 12 रूट 2 अपॉन 2 दैट इज 6 रूट 2 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हमें AC का लेंथ मिल गया. AC इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर. दिस इज AC बाई 45 45 90 डिग्री थियरम. आफ्टर दैट अब क्या करना है उसको देखिए, तो हम फिर से इसको नोट कर लेते हैं सभी टर्म्स. सिंस AC इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर, OB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर जो कि रेडियस है ऑलरेडी गिवन.
तो ये दो हमें चाहिए थे, रिक्वायर्ड चाहिए थे किसके लिए, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल हाफ मल्टीप्लाइड बाई OB इंटू AC, मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 12, क्योंकि OB देखो OB भी रेडियस है, ये भी 12 सेंटीमीटर, OA भी रेडियस है, ये भी 12 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू 12 इंटू AC कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखो 6√2 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ 6√2 यूज करते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 या 12, तो 6 इंटू 6√2 36√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गई 36√2 सेंटीमीटर स्क्वायर आर स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ सेक्टर AOB 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों मिल गए। अब इसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि एरिया बिटवीन सेक्टर AOB एंड ट्रायंगल AOB, तो वही लिखते हैं यहाँ पर, या इसी को हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया बिटवीन सेक्टर AOB एंड ट्रायंगल AOB इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB इट इज हाउ मच, एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पर है, यहाँ लिख लेते हैं 18 पाई, माइनस area of triangle AOB 36√2, from here this is 36√2, so 36√2. Now we see that 18 common in these two terms, so 18 common we get into bracket pi minus 2√2 square centimeter। ये रहा अपना एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, बोलो ये जो शेडेड पोर्शन यहाँ पर है, या उसी को हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ एरिया बिटवीन सेक्टर AOB एंड ट्रायंगल AOB। तो 18 पाई माइनस 2√2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये रहा अपना एरिया और ये रहा क्वेश्चन 7 का आंसर। तो इस तरह से बहुत ही इजी वे से फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड, वेरी इजी मेथड। ओनली 2 फार्मूले अप्लाई करने थे, कौन कौन से, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये टाइप का अगर क्वेश्चन कहीं पर भी आता है तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल so you should subscribe the channel first. Now see question number 8. Question number 8, OPQ is the sector of a circle. देखो OPQ is the sector of a circle having center at O and radius 15 centimeter. If measure of angle POQ equal to 30 degree, find the area enclosed by arc PQ and chord PQ। तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो इसको देखो पहले समझने के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम भी बना दिया हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि डायग्राम बना के ही सॉल्व करो, लेकिन डायग्राम बना करके सॉल्व करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। देखो इससे सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसका सेंटर क्या लेना है, O। फिर यहाँ पर OP एंड OQ रेडियाई ऑफ द सर्कल, PQ इज द कॉर्ड, POQ is the central angle, POQ is the central angle which is 30 degree, और यहाँ पर भी PR परपेंडिकुलर टू OQ। ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करके रेडी रखना है। अब इसके बाद आते हैं सोल्यूशन पर। नाउ सी द सोल्यूशन। सिंस रेडियस ऑफ सर्कल R equals 15 centimeter, central angle means theta 30 degree, 30 into pi upon 180 इक्वल टू पाई अपॉन 6 रेडियन, ये हमें दोनों मिल गए। R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और पाई अपॉन 6 रेडियन। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ
ये सेक्टर है ओ पी और ये कर्व के थ्रू आना है, यहाँ पर एक सेक्टर हो गया। द एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, दिस इज फार्मूला। Area of sector OPQ half r square theta. Substituting the value, this will be equal to half into square of 15, this is value of r, into theta, that is pi upon 6. So half into square of 15, that is 225 into pi upon 6. So we see that there is no cancellation. So this will be 225 pi upon 12 square centimeter. इसको ऐसे ही रख देते हैं. If you are interested in decimal, you should substitute the value of pi 22 upon 7 multiply by this 225 into 22 upon 84. तो डिवाइड करोगे फिर डेसिमल में आंसर आ जाएगा. बट दिस इज बेस्ट पार्ट, द बेस्ट आंसर 225 pi upon 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के बाद क्या करना चाहिए वो देखिए. फाइंड करनी है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. तो एरिया ऑफ सेक्टर तो मिल गया, लेकिन अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल रिमेनिंग है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के बाद हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगी, जो शेडेड पोर्शन यहाँ पर. तो इन ट्रायंगल ओ पी आर एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 30 डिग्री गिवन ऑलरेडी, सेंट्रल एंगल, एंड पी आर परपेंडिकुलर टू ओ आर. देयरफॉर एंगल ओ पी आर इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है. तो रिमेनिंग सम ऑफ रिमेनिंग एंगल क्या होगा 90. ये 30 ऑलरेडी है, तो 90 माइनस 30 करो तो भी 60, या 180 में से माइनस कर दो 90 प्लस 30 120 को तो भी 60. किसी भी वे से फाइंड कर सकते हो. दिस इज द रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी मेथड से भी शो करोगे, लेकिन किसी एक मेथड से शो कर दो यहाँ पर. तो फिर से देख लो, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 30 डिग्री, पी आर इक्वल टू पी आर परपेंडिकुलर टू आर, angle OPR equal to 60 degree. Since PR equals half into OP, PR equal to half into OP by 30, 60, 90 degree theorem. और ये फॉर्मूला किसका है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इन और राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ दोनों लिखा है वो, बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, और ये है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. तो पी आर इक्वल टू half into 15, because OP is radius of circle and it is 15 centimeter. So this is 15, half into 15 equal to 15 upon 2 centimeter. इसको भी ऐसे रखते हैं, do not divide. अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सेम फार्मूला अप्लीकेबल है यहाँ पर भी. तो हाफ एज इट इज OQ, बेस यहाँ से देखो OQ इज द बेस, हाइट इज PR. तो 15 OQ इक्वल टू 15 बिकॉज ऑफ रेडियस. PR इक्वल टू 15 अपॉन 2, जो कि हमने जस्ट कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर. तो PR इक्वल टू 15 अपॉन 2. तो 15 इंटू 15 225 एंड 2 इंटू 2 बिकम्स 4. तो दिस विल बी 225 अपॉन 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज area of triangle OPQ. Area of triangle OPQ is 225 upon 4 square centimeter. ये भी मिल गया. Now we know area of sector OPQ, which is 225 pi upon 12 square centimeter, and area of triangle OPQ 225 upon 4 square centimeter. तो अब हमें ये लिखना है यहाँ पर स्टेटमेंट कि एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क PQ and chord PQ. एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ मीन्स ये जो शेडेड पोर्शन यहाँ पर शो किए गए. देखो ये है आर्क PQ और ये स्ट्रेट लाइन जो यहाँ से PQ को ज्वाइन करती है ये है कॉर्ड PQ. तो इनके बीच का एरिया कौन सा हुआ है, शेडेड पार्ट. यही एरिया हमें फाइंड करना है. क्लियर. सी वंस अगेन, एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ. Area of sector OPQ minus area of triangle OPQ. It is equal to 225 pi upon 12 minus 225 upon 4 square centimeter. Now we see that 225 upon 4 common in both, क्योंकि 12 में क्या है 4 into 3. ठीक है. तो 225 upon 4 common into
π/3 - 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एज इट इज आंसर छोड़ सकते हो, या अगर इसको एग्जैक्टली डेसिमल में निकालना है तो सभी वैल्यू ये डिवाइड भी करना होगा। पाई इज 3.14 और 22/7 ले सकते हो, और इसको भी सिंप्लीफाई करके फिर दोनों रिजल्ट को मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर इन डेसिमल पॉइंट, मीन्स इन एग्जैक्ट नंबर्स। तो 225/4 into π/3 - 1 square centimeter. This is the area of shaded portion, or you can say area enclosed by an arc and chord of a circle. Now see next one, question number 9. The perimeter of a sector of circle of area 25 pi, this is 25 pi square centimeter, is 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ये 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर 20 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर और एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। नाउ फॉर द सॉल्यूशन, सिंस एरिया ऑफ सर्कल equal to 25 pi square centimeter, you can say it is given. Area of circle is 25 pi square centimeter. So what is the formula for area of circle? You know very well. Area of circle is pi r square, and it is equal to 25 pi. So we see that pi r square equal to 25 pi. Here pi and pi get cancelled on both sides. Therefore r square equal to 25. So taking square root on both sides, we get r equal to 5 centimeter. r equals 5 सेंटीमीटर। अब इसको शो करने के लिए मैंने सिर्फ एक सर्कल बना के सेंटर O और इनके सिर्फ रेडियाई शो कर दिया कि OP एंड OQ ये हो गए। तो हमें फाइंड करनी है कि एरिया ऑफ द सेक्टर मीन्स ये फुल पोर्शन, ये जितना भी फुल पोर्शन है ये सेक्टर OPQ, ये फुल एरिया फाइंड करनी है, राइट। सिर्फ समझने के लिए डायग्राम यहाँ पर छोटा सा दे दिया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या गिवन है। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई, हमने एरिया का तो यूज कर लिया और एरिया से हमें क्या मिला, रेडियस r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद गिवन है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, देखो ये ना 20, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होगा कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर को मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। दिस इज OP एंड दिस इज OQ। तो OP एंड OQ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड PQ इज द आर्क। तो OP प्लस OQ प्लस PQ ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर S, और OP एंड OQ आर रेडियाई, दैट इज R प्लस S। यही होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, R प्लस S, दैट इज 2R प्लस S। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू 2R प्लस S इक्वल टू 20। नाउ वी नो R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू हियर, तो देयरफॉर 2 into 5 प्लस S इक्वल टू 20, क्योंकि हम रेडियस का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, R इक्वल टू 5, तो 2 into 5 plus S equal to 20. Therefore, S equal to 20 as it is, and here 2 5 are 10, so 20 minus 10, taking 10 on the right hand side. So S equal to 20 minus 10 becomes 10 centimeter. Means ये 10 मिला हमें, ये सिर्फ आर्क लेंथ PQ मिला, ये 10, देखो रेडियस 5 है और आर्क लेंथ हमें कितना मिला 10 सेंटीमीटर, मतलब डबल ऑफ द रेडियस। ये ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि रेडियस 5 है और आर्क लेंथ 10 मिल गई तो इट इज डबल रिलेशन, नॉट ऑलवेज, इट मे बी एनीथिंग। वो कैलकुलेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा कि PQ का लेंथ कितना है, रेडियस से छोटा भी हो सकता है और रेडियस से बड़ा भी हो सकता है। तो S इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। तो S मिलने के बाद अब हमें
थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, वो मैं फार्मूला बता देता हूँ कैसे फाइंड करोगे। देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है इसके बाद, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो चलो लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो ये जो आर स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू आर। यहाँ देखो आर इंटू आर हो गया, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू आर थीटा, क्योंकि आर स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू आर थीटा, ये है ना आर स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक? ओके। तो ये आर थीटा एक्चुअल में क्या है? व्हाट इज आर थीटा? दिस इज लेंथ ऑफ एन आर्क, एस इक्वल टू आर थीटा है, राइट? यही है ना एस, जो हमें वैल्यू यहाँ पर मिली, एस इज 10 सेंटीमीटर। तो यही एस जो है आर थीटा मीन्स ये आर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ये आर थीटा का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो हाफ इंटू, अब एक ही रेडियस यहाँ रिमेनिंग है 5 इंटू आर इंटू थीटा मीन्स एस। देखो यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि एस इक्वल टू आर थीटा, और एस कितना है 10, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10। तो हाफ इंटू 5 इंटू 10, नाउ 2 5 जा 10, 5 इंटू 5 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ से क्लियर कट एकदम लिख सकते हो। देखो हाफ आर स्क्वायर थीटा, फिर से देख लो, हाफ इंटू आर थीटा लिख सकते हो। और ये आर थीटा क्या है? एस मीन्स लेंथ ऑफ एन आर्क, और यही है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल टू हाफ इंटू वैल्यू ऑफ आर 5 इंटू वैल्यू ऑफ आर थीटा मीन्स एस, इट इज 10। सिंप्लीफाइंग वी गेट एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये रहा अपना 9th क्वेश्चन का आंसर। 9th क्वेश्चन completed here. Now see question number 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं अभी और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है और कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 10, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर is 56 centimeter. Find the area of the sector. So this question is similar of the previous question. See the solution of this question. तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्टार्ट योर सोल्यूशन सिंस एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन। So what is area of circle formula? We know area of circle is pi r square. So pi r square equal to 64 pi. Here pi and pi get cancelled from both sides. So therefore r square equal to 64. R square is 64. After this step, taking square root on both sides. So square root of r square is r. Square root of 64 is plus minus 8, but radius cannot be negative, so we should write here only plus 8, that is 8 centimeter. So therefore r equal to 8 centimeter means radius of circle is 8 centimeter. Now see the figure. OP and OQ, radii of the circle. Angle theta is the central angle. This is r, and this length जो यहाँ पर arc length show की गई है, this is s. Arc length PQ, s. So once again using perimeter of sector formula. तो perimeter of sector formula के लिए अभी perimeter of sector is 56 centimeter given. It is in the question 56. So perimeter of sector is 56 centimeter. So therefore what is perimeter of sector? जैसा कभी भी मैंने previous question में explain किया कि r plus s, यही है perimeter of sector. तो r plus r 2r plus s, that is 2r plus s. अगर मान लो s की भी वैल्यू रखोगे तो यहाँ 2r प्लस r थीटा भी लिखोगे, तो इसमें से थीटा भी मिल जाता है, लेकिन हमें थीटा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली एरिया ऑफ सेक्टर पर जा सकते हैं। इन केस अगर फाइंड करना हो कि फाइंड सेंट्रल एंगल थीटा, तब क्या करोगे उसके लिए भी बता देता हूँ। तब यहाँ लिखना 2r प्लस s
और यहाँ s की वैल्यू क्या रखना है, r इंटू थीटा, क्योंकि r अपने पास है अवेलेबल, तो थीटा की वैल्यू रेडियन में डायरेक्टली मिलेगी। किसमें, रेडियन में। तो वो वैल्यू रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो अभी चलते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो देयरफॉर 2r प्लस s इक्वल टू 56 मिल गया। दिस इज s, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर 2 इंटू 8 प्लस s इक्वल टू 56। तो 2 इंटू 8 इज 16, तो 16 प्लस s इक्वल टू 56। देयरफॉर s इक्वल टू 56 माइनस 16, इट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया कि लेंथ ऑफ एन आर्क 40 सेंटीमीटर। क्लियर, ओके। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं, सबसे पूछ रहा हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स यस, रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। ओके। सिंस एरिया ऑफ अ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा, दिस इज फार्मूला। देखो मैथमेटिक्स कर रहे हो तो रिलैक्स होकर के करो, फ्री फ्रॉम टेंशन, कुछ टेंशन लेके नहीं करो। दिस इज वेरी इजी सब्जेक्ट, वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, वेरी सिंपल and very easy tricks and very easy methods are given in the question. Since area of a sector half r square theta, this is formula for area of sector. So half r square theta can be expressed as half into r theta, because r into r theta is r square theta, half as it is, so half into r theta. अब यही r theta क्या है, s है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। इट इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू एस, सिंस एस इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला अच्छी तरह से मालूम है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ आर एंड एस। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ आर एंड एस, वी गेट हाफ इंटू 8 इंटू 40, हाफ इंटू 8 इंटू 40। देखो रेडियस 8, एस इक्वल टू 40 और हाफ एज इट इज। तो ये सिंप्लीफाई कर लो, 2 4 जा 8 एंड 4 इंटू 40 बिकम्स 160। क्लियर। So therefore area of sector of circle equal to 160 square centimeter. Area of sector of circle is 160 square centimeter. तो ये जो 160 यहाँ पर आया हुआ है आंसर, ये पूरे पार्ट का एरिया इतने का। अगर हम इसको पूरा शेडिंग कर दें यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एरिया कितनी है, 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर हमने थीटा फाइंड आउट नहीं किया, सेंट्रल एंगल नहीं फाइंड किया, फिर भी एरिया ऑफ सेक्टर अपने को मिल जाएगी। इन केस अगर पूछा है किसी क्वेश्चन में, कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं कि व्हाट इज एंगल थीटा और व्हाट इज सेंट्रल एंगल इन डिग्रीज, सेंट्रल एंगल इन रेडियंस। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर आर थीटा, और आर की वैल्यू रख देंगे तो थीटा की वैल्यू में रेडियन में मिलेगी, और रेडियन टू डिग्री में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन 5, ये ध्यान देना है। ये कन्वर्ट कर सकते हो, तो इजिली यू कैन कन्वर्ट दैट एंगल इनटू डिग्रीज। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 10 एंड completed exercise 1.2, that is chapter finished। एक्सरसाइज हो गई, रिमेनिंग पार्ट जो मिसलेनियस है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने कुछ नोट फार्मूले के फॉर्म में दे दिए हैं, वो भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, देख लो। नोट करके जो दिया, लेंथ ऑफ एन आर्क डिनोटेड बाय लेटर एस, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इक्वल टू आर इंटू थीटा, थीटा मेजर्ड इन रेडियंस। आर की वैल्यू किस में भी हो सकती है, एनी यूनिट, लेकिन थीटा हमेशा रेडियन में ही लोगे तो ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा। एरिया ऑफ अ सेक्टर ए इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, हियर थीटा मेजर्ड इन रेडियंस। और सपोज कर लो हमें थीटा नहीं दिया है, सिर्फ रेडियस और लेंथ ऑफ एन आर्क गिवन है, तो ए इक्वल टू हाफ आर इंटू एस, वेर एस इज लेंथ ऑफ एन आर्क, एस इज लेंथ ऑफ एन आर्क।
एरिया हाफ इंटू आर इंटू एस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से बाहर रखोगे और किसी भी एग्ज़ाम में फार्मूले या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेईई, सीईटी और एनी अदर एग्जाम्स, क्योंकि मेनी एग्जाम्स आर देयर, मेनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आर देयर, क्योंकि कहीं भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट ये एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और सभी फार्मूले अच्छे से बाहर करेंगे। और इसके साथ साथ प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thank you.